Finally, the wait is over. The most awaited exam for the this year NEET aspirants, NEET 2022, going to be held on the 17th July. I am uploading this video on a Sunday, and NEET gonna be held on the next Sunday. So there is almost 7 days are left for the NEET 2022. That's why I thought that I should make a video now telling you people that you should keep some things in your mind so that you can score better. As I cracked the NEET in the just last year, that means in 2021, so I can still remember that what I faced and in the last 7 days of NEET 2021. So without wasting any time, let's begin. Those who don't know me, I'm Orithro De, a first year professional medical student at Bankura Shommiloni Medical College, Bankura. I scored 606 with All India rank 16,540 NEET 2021. Firstly, I want to address that take care of yourself in these last 7 days because physical health also plays an important role in scoring, in attempting an exam. So keep this thing in your mind. अगर एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले तुम्हारा तबीयत बिगड़ जाए, तुम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा प्रिपरेशन तो हैम्पर तो होगा ही, ऊपर से तुम्हारे माइंड में एक स्ट्रेस भी डेवलप होगा. So keep this thing in your mind and take care of your health, have good food and also spend a relaxed time. Because and as इतना भी हार्ड वर्क मत कर लो जो तुम्हारा हेल्थ में एडवर्स इफेक्ट डाल दे. Second point I want to address that don't start new topic now. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं अगर एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले हम नया टॉपिक याद करके जाए एग्ज़ाम में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और इससे हमारा मार्क्स भी इंक्रीज़ होगा और हमारा सिलेक्शन का चांस भी बढ़ जाएगा. बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर तुम एग्ज़ाम के जस्ट कुछ दिनों पहले न्यू टॉपिक और न्यू कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो और जस्ट रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो तो दैट विल मेक एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर प्रिपरेशन. तुम पुरानी जो चीज़ें अभी तक याद किए हो और अभी तक सीखे हो, उसको प्रैक्टिस किए हो, वो भी तुम भूल भी सकते हो. सो don't do this thing in your in this last 7 days. Attempting the mock test or new MCQs, if you find out that you don't know the answer or don't know the process how to solve or carry out this thing, so don't panic that I think you have left this concept before. So if you think that you can cover it now, then do this or then learn this, but I will suggest that don't do this because it will make you more tensed. तुम लोगों से एक मेरे से पूछा था भैया मेरा इस बार सिलेक्शन शायद नहीं होगा क्योंकि मेरा नीट मॉक टेस्ट में मार्क्स 550 क्रॉस नहीं कर रहा, तो मुझे शायद ड्रॉप लेना चाहिए. तो मैं इस रेस्पेक्ट में बोलना चाहता हूँ डोंट अलाउ टू काम सच थॉट्स इन योर माइंड बिकॉज किसी को भी नहीं पता है अभी तक जो नीट 2022 का MBBS का कट ऑफ्स क्या होगा, व्हाट एंड हाउ विल बी योर एग्जाम. सो द नीड ऑफ द आवर इज दैट टू डू preparation properly to find out what mistakes you are now doing still and what should be your next step and to rectify those mistakes. So keep this thing in your mind and do another point I want to address that avoid procrastination because इस last 7 days तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है. अगर तुम मेहनत करोगे तुम्हारा आउटकम भी ऐसा होगा. सो एटलीस्ट स्टडी फॉर द 13 to 14 hours per day except the one day before the NEET exam that on the 16th July और सैटरडे. उस दिन तुम लोगों का जस्ट चिल करना है और सारे कॉन्सेप्ट जस्ट माइंड में याद करना है, पढ़ना नहीं. ओके. Now let's discuss that how you can increase your score at least for the 50 to 60 marks in those few days. So I think 50 to 60 marks से ज़्यादा होगा भी नहीं क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता अगर तुम अभी भी तुम्हारा नीट मॉक टेस्ट में मार्क्स 300 to 350 आ रहा है तो तुम्हारा एग्जाम में तुम्हारा 650 आ जाएगा. ऐसा होगा नहीं, पर डोंट कंसिडर एज ए नेगेटिव थिंग बट ये सच है. ओके. फर्स्टली मॉक टेस्ट पेपर जो अभी तुम सॉल्व किए हो, अटेम्प्ट किए हो, जितना भी मार्क्स है उसको एक बार ज़रूर देखना. तुम क्या क्या मिस्टेक्स किए हो अभी तक, क्या क्या सिली मिस्टेक्स किए हो, कौन सी कॉन्सेप्ट में तुम्हारा मतलब डेफिशिएंट था, कौन सा कॉन्सेप्ट तुम भूल गए हो, वो एक बार ज़रूर देखना क्योंकि मॉक टेस्ट तुम्हारा प्रिपरेशन को सच में डिफाइन करता है तुम्हारा प्रिपरेशन कितना हुआ है और कितना होने अभी भी बाकी है. एंड आइडेंटिफाई द सिली मिस्टेक्स बिकॉज वो तुम्हारा नीट मॉक टेस्ट का पेपर्स और सॉल्व क्वेश्चंस जो अभी तक तुमने अटेम्प्ट किए हो वो देख के ही पता चलेगा तुम क्या क्या सिली मिस्टेक यूजुअली करते हो क्योंकि अलग डिफरेंट स्टूडेंट का सिली मिस्टेक्स करने की टाइप भी डिफरेंट होता है. सो जनरल कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम्हारे इस टाइप की सिली मिस्टेक शायद होगा. सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में ये भी बोलना चाह रहा हूँ तुम फिजिक्स का फार्मूला एक बार सब फार्मूला एक सारी याद करके जाना
और कॉन्सेप्ट तुम्हारा अगर याद है तो उसको ज़रा माइंड में भी रिवाइज करना। तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम फिनिश नहीं कर पाओगे इस शॉर्ट टाइम में। सो एंड बायोलॉजी के मैं बोलना चाहता हूँ, बायोलॉजी के में बहुत सारे बायोलॉजी के वास्ट सिलेबस है, सो सारे तुम देख नहीं पाओगे और सारे तुमको याद करके भी जाना है फिर भी। लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, इस इन्फॉर्मेटिव बेस्ड चैप्टर्स होता है, तो इस इन्फॉर्मेशन को याद करके जाना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर भूल गए तो तुम उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड सेकेंडली इज द दैट आई हैड मेक ए वीडियो ऑन दैट व्हिच टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड व्हिच आर नॉट। सो वो वीडियो एक बार देख लेना अगर तुम बायोलॉजी में मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड फॉर द केमिस्ट्री, फर्स्टली आई वांट टू एड्रेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी सीरीज होता है, किसके बाद में कौन आता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसको एक बार सारे याद करके जाना। एंड ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स और जो फार्मूलाज है उसको याद करके जाना। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में सारे फार्मूला एज ए फिजिक्स बहुत सारा रिलेटेड होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सारे फार्मूला को एक बार याद करके जाना। तुम लास्ट टाइम तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, अभी ओनली 7 days ही बचे हैं। सो फार्मूला एटलीस्ट शायद याद करके जाना, तुम अगर उसको इम्प्लाई कर सकते हो एग्जाम में। Last but not the least, don't panic. Most of the students used to do panic now in the last 7 days or also in the exam hall, that make an adverse effect on their preparation and also while attempting the question. So keep your mind totally cool, calm, and try to attempt more number of the question as much as you can, because ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तुम्हारे सिलेक्शन का चांस भी ज़्यादा आएगा। एंड ओब्वियसली सही करके, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर दो, उससे मोस्ट ऑफ देम गलत हो गया, तो ये तुम्हारा मार्क्स तो इंक्रीज करेगा नहीं, ऊपर से तुम्हारा नेगेटिव मार्क्स इंक्रीज कर देगा। सो कीप दिस इन योर माइंड। So guys, that's for today. I hope this video will surely help you, and I wish you all the best for the NEET 2022 aspirants for the NEET exam. And if you like this video, please don't forget to subscribe this channel and share among your friends and relatives. And if you want to make any suggestion or want to ask anything, don't hesitate to comment below. I will try to answer all of them. Thank you so much.